Hello friends, my name is Prasu Jain and I have secured 34th rank in Indian Statistical Service Examination 2020। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। होपफुली आपके लिए इस स्ट्रेटजी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, देन मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। So I have done my schooling from my hometown, which is Khimlasa. It is in Sagar district of Madhya Pradesh. I have done my schooling from Hindi medium government school. So यदि कोई जो भी है सोचते हों कि एक छोटे से गांव से आकर या कोई हिंदी मीडियम से पढ़कर हम कोई यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपने आप में इम्प्रूव ला सकते हैं, कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो आपके लिए एक लाइफ के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी काम आएगी। सो when I have done my graduation and post graduation in statistics, I have done my graduation from Ramanujan College, University of Delhi. So जैसे मैं कॉलेज में आया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई। आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, how to write in English, or even the basic terms of English vocabulary. So what I have done that I started reading newspapers, and my professor, especially I want to mention the name of Dr. Shruti Jain, who helped me a lot in this process. She gave me many advice that how can I improve my English speaking skills as well as English writing skills. So I have started reading newspaper, then the basic simple novels of English language. I have also joined the debating society of my college. So the debating society helped me to articulate in my arguments as well as help me in improving my English speaking skills. So यदि कोई सोच रहा है कि आप डायरेक्ट एक छोटे से गांव से आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है और आप चाहते हैं कि आप कैसे अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव ला सकते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप सबसे पहले आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से आप रोज़ डेली 5 to 10 वर्ड्स नोट कीजिए और ऑल्सो नोट डाउन कीजिए कि उन सारे वर्ड्स का सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है। देन आप नोवेल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो आपकी स्कूल में थी उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत बेसिक नोवेल या फिर किसी भी जॉन की नोवेल जो भी आपको पसंद है। किसी को सेल्फ हेल्प जॉन पसंद आता है, किसी को नॉर्मल फिक्सन पसंद आता है, नॉन फिक्सन, तो आप जो भी नोवेल आपको पसंद हो उससे आप पढ़ सकते हैं। देन आई वॉन्ट टू टेल माई स्ट्रेटजी, आई वॉन्ट टू शेयर माई स्ट्रेटजी ऑफ this Indian Statistical Service Examination and how I prepared for this examination. This was my second attempt and I have secured 34th rank this time. I want to share you all that what I did wrong in my last attempt and how I improved and learned from the mistakes that I have done in last year's attempts. तो last year मेरा मेंस this यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है 2 स्टेज में होता है। एक सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो रिटेन एग्ज़ाम में देयर आर टोटल 6 पेपर्स, 1 जनरल इंग्लिश, 1 जनरल स्टडीज़ एंड 4 पेपर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल माई स्ट्रेटजी ऑफ जनरल स्टडी एंड जनरल इंग्लिश। तो जनरल स्टडी में आई स्कोर्ड 37 मार्क्स एंड इन इंग्लिश पेपर आई हैव स्कोर्ड 47 marks, which considered very good when it comes to the Indian Statistical Service Examination. So in general studies part, there are many sections. For example, history, geography, polity, economics, and current affairs. So for history, what I have done that I read history from the NCERT, from NCERT. And for modern history of modern India, I have preferred the history of modern India by Spectrum publication. So this proved me very beneficial. For polity part, I have read the Lakshmikant, but we do not need to read all the chapters of Lakshmikant. Only few chapters of Lakshmikant will help.
and the name of chapter I will share in the comment box of this YouTube channel. So for economics, we do not need to read any book particular, not even NCERT. Most of the questions of economics comes from the current affairs section. So you can follow any one of the newspapers, or either The Hindu or the Indian Express. But I would suggest you to read the Indian Express, especially the explained section of Indian Express. It is very helpful for this examination, or for giving the answer of current affairs as well as for the economies. And for geography, I read only NCERTs of 11th and 12th class. So this is my strategy of general study. So one more thing which I did in general study, that I used to read answer given by many toppers, written by many toppers. For example, I read answers copy from the Vision IAS website, answer copy from IAS Baba X website, also from the Insight synopsis. But I would also suggest you to at least practice writing on last 1 or 2 years paper of general studies. इससे आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन भी हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं तो वी विल गेट द एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स. सो आप ट्राई कीजिए कि लास्ट 1 से 2 साल के पेपर आप खुद से लिख के देखें एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और आप देखिए कि आप सारे आंसर्स लिख पा रहे हैं उस टाइम पीरियड में या नहीं लिख पा रहे हैं. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेली आंसर नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम लास्ट 1 या 2 साल के आप पेपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ISS के जनरल स्टडी पेपर में वो लिखिए. एंड फॉर द इंग्लिश पार्ट, इन इंग्लिश दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड 47 मार्क्स. सो I did not read anything specific for English language. For the vocabulary and the idiom section, I only read the Hindu newspapers or the Hindu vocabulary app. And for the essay part, I have read the essay copy of different toppers. So जो different toppers की जो ऐसे कॉपी पढ़ी तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली. तो आप भी यह कर सकते हैं कि आप ऐसे यदि कम से कम 1 या 2 ऐसे खुद से लिख कर देखिए तो इससे भी आपको लगेगा कि आप यू आर एबल टू राइट 1000 वर्ड्स और इन दैट गिवन टाइम पीरियड और नॉट. तो आप सबसे पहले 1 या 2 ऐसे कम से कम लिखिए और जनरल कोट्स याद कीजिए. जो कोट्स जो सद्वाक्य या कोट्स बोलते हैं उनको आप याद कीजिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपका ऐसे और अच्छा होगा और आपको ऐसे में बहुत अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं. तो ऐसे कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो 30 नंबर्स ऑफ ऐसे एंड देन द प्रेसी राइटिंग. सो बस दिस टाइम आई डिड प्रैक्टिस प्रेसी राइटिंग फ्रॉम Renan Martin and from Renan Martin general English grammar book, and I also took help from many YouTube videos. सो प्रेसी राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि हमें प्रेसी राइटिंग भी काफ़ी स्कोरेबल होता है और इसमें हमें सिर्फ कॉपी या पेस्ट नहीं करना होता. प्रेसी राइटिंग से हमें प्रेसी की जो समरी लिखनी होती है, वी हैव टू राइट दैट समरी ऑन आवर ओन वर्ड्स. तो आप ट्राई कीजिए कम से कम 1 या 2 प्रेसी राइटिंग लिखें. एंड फॉर ग्रामर पार्ट आई प्रेफर रेनन मार्टिन जनरल ग्रामर बुक. तो आप थोड़े या फिर लास्ट ईयर जो SSC के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर आप अरिहंत की SP बख्शी की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं. तो जनरल इंग्लिश और एंड जनरल स्टडीज़ दोनों में मुझे लगता है कि अब 40 मार्क्स ईजीली स्कोरेबल है यदि हम डेली उसको पढ़ रहे हैं और वी आर कंसिस्टेंट इन आवर स्टडी. सो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर में. तो यदि आप जनरल स्टडी और जनरल इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी एज मिल सकता है ओवर दी अदर एस्पिरेंट्स. तो यदि फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई जनरल स्टडीज़ का पेपर फॉर एग्जांपल ठीक नहीं हुआ किसी वजह से या कोई क्वेश्चन रह गया आप नहीं कर पाए तो आपके जनरल स्टडी और जनरल इंग्लिश के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करेंगे. कई बार लोगों को डाउट रहता है कि
कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट दिस इज़ आवर पर्सनल चॉइस. But if someone would ask me to my advice, then I would suggest rather not join any coaching classes. For this preparation of this examination, self study is more than enough. If you are consistent हैं, आप daily 7 to 8 hours निकाल रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है. आप फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए करीब इफ़ यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फ्रॉम दी जुलाई मंथ ऑल्सो और इवन अगस्त, देन जो 7 या 8 महीने का टाइम है बहुत मोर देन इनफ टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए. तो आप ट्राई कीजिए कि आप डेली कंसिस्टेंट रहें. और इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर अपने रूम में रहें या दिन भर पढ़ते रहें. आप कुछ रिक्रेशनल एक्टिविटी के लिए भी टाइम निकालिए. फॉर एग्जांपल इफ़ यू लव जॉगिंग और यू लव लिसनिंग म्यूजिक और लव वॉकिंग, व्हाट आई यूज्ड टू डू, देन आई डेली यूज्ड टू वॉक. सो मैं शाम के टाइम डेली वॉक पर जाता था. दिस इज़ लाइक आई फील रिजुविनेटेड आफ्टर दी स्टडी ऑफ 4 और 5 आवर्स और 7 और 8 आवर्स. तो डेली वॉक पर जाइए. फिर जो भी आपको पसंद हो करना आप ट्राई करते रहिए, या जो भी आपकी हॉबी है. क्योंकि जो हॉबी आप अभी प्रैक्टिस करेंगे डेली 5 और 10 और इवन 15 मिनट भी, तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी. और जिसको लगता है कोई सपोर्ट ग्रुप के लिए, देयर इज़ अ टेलीग्राम चैनल इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑब्लिक स्टैटिस्टिक ऑप्शनल. उसका यूज़र नेम है ISS स्टैट. तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली उस टेलीग्राम चैनल से. तो आप उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, या फिर तो काफ़ी सपोर्ट ग्रुप एज ए सपोर्ट ग्रुप की तरह ही काम करता है वो टेलीग्राम चैनल. इसके अलावा मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के जो वीडियोस देखे पास्ट ईयर के टॉपर्स के, उनकी स्ट्रेटजी से भी मैंने सीखा कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ द लास्ट ईयर टॉपर. तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली. देन इसके बाद रिटन पार्ट के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए हमें बस ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है. बस आपने जो सिलेबस पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, एंड हाउ गवर्नमेंट यूज ऑल दो एप्लीकेशंस. तो मैं यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, डेली प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग आप लिखें, और अपने दोस्तों के साथ अपने आंसर शेयर करके एक दूसरे को फीडबैक दें. होपफुली आपको वीडियो में जो मेरी स्ट्रेटजी है हेल्प करेगी. और आपको यदि कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर टू एज मेनी एज कमेंट्स एज आई कैन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.